राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So, Avataridesh devotees, we are today discussing, while coming up in the elevator, they say we have to go to M1. So, then I thought M1 means Mahatma 1. I mean, as a devotee, whatever you see and wherever you see, you have to connect with Krishna and his teaching. That should be our consciousness and vision. And once we were in Singapore with a group speaking Bhagavatam on cruise. So when we went to Singapore, they had one line and a fish, and water is coming from their mouth. So everybody was going there, it's very auspicious. Oh, I said, okay, Matsya and Narsingh avatar together. I mean, you see something and it just reminds you. So that's actually the consciousness we have to cultivate. Whatever you see, wherever you see something, how you can connect with Krishna or teaching of Krishna. So everywhere you have to be Krishna consciousness. So when I was saying about M1 Mahatma 1, then a verse just floated on my tongue. And this is a very nice verse of Bhagavad Gita. And recently we are discussing teaching of Lord Chaitanya, which Srila Prabhupada has actually written as a summary study in 68, so early. So there was one sentence in the preface that about Sri Chaitanya Mahaprabhu. There is information in Bhagavatam, in Bhagavad Gita, in Upanishad, Mahabharata. 4 things Prabhupada has written. So on that day, somehow Bhagavatam we know, very famous verse of Kar Bhajan about Sri Chaitanya Mahaprabhu as incarnation. Anybody can remind me what is that verse? Krishna Varnam Tvesha Krishna Sambo. This is the verse. Mahabharata has also a very famous verse. Swarna Varna He Mango Varanga. So this is very famous verse. And also in Bhagavatam in 7th canto there is a verse about Chaitanya Mahaprabhu, Chinna Avatar, a covered incarnation.
And also in the Bhagavatam, when name giving ceremony of Lord Krishna, then he says Krishna appears in every yuga in different colors, so there is a yellow color also. Then we were thinking, where is in Bhagavad Gita? Well, Srila Prabhupada has written that Chaitanya Mahaprabhu is also described in Bhagavad Gita. So on that day something just sparked in my mind. And just this here when we are coming, the same verse just floated. So we are discussing this famous verse of the 9th chapter of Bhagavad Gita, the most confidential knowledge, verse number 13 and 14. Is it okay? So the verse goes, Mahatmanas tumam parat Devim prakritimashritah Bhajate ananya manaso Gyatva bhutadimavyayam. So many times we have discussed this verse, right? Always we are reading this verse. So this verse is coming after the discussion of non-devotees or Mayavadis or atheists. And after that this verse is coming. As compared to those who are avajananti mam mudha manusham tanumashritam param bhavam ajananto mam bhut moghasha mogha karmano mogha jnanam asurim rakshim chaiva prakritim mohitim shrutaha. So these are the mudha or fools, and opposite to that are mahatmas. So you M1, you can also say Mudha or Mahatma. So maybe M2 Mudha, M1 Mahatma. Something. So Mudha and Mahatma together. Mudha means fools. And most of the time when Srila Prabhupada figuratively say Mudha, then he says as. Mudha means as. Working hard for nothing. Just getting a couple kicks a day, that's all. So Mahatma, and the another question sometimes asked, well, in Bhagavad Gita, is there any mention of Srimati Radharani? This is one of the questions sometimes asked. And once Srila Prabhupada was asked, in a Western world, well, you are doing kirtan all the times. You say Sankirtan, Kirtan, Kirtan. And then you say our movement is established based on Bhagavad Gita as it is. So where in the Bhagavad Gita is Kirtan? This was the question asked from Srila Prabhupada. And then Srila Prabhupada quoted the next verse 14, that there is a Kirtan mentioned in Bhagavad Gita. He said, Sadatam kirtanayanto mam yatatansya dridhavrataha namasyantasya mam bhaktya nitya yukta upasate. He says, yeah, this is a kirtan in Bhagavad Gita. So how you say there is no kirtan in Bhagavad Gita? And then where is Radharani in Bhagavad Gita? Devim Prakritim. This Devim Prakritim is Radharani. Because divine energy is Radharani. And then on that day we concluded in one way, Chaitanya Mahaprabhu is in a mood of Radharani. So this verse also describes Chaitanya Mahaprabhu. Because Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of और बीच में थोड़ा हिंदी भी बोलना है. Okay, Hare Krishna. सभी को समझ में आता है तो then we can speak. Anybody understand? Everybody understand Hindi or no? सब हिंदी समझते हैं. अच्छा, अरे आप भी समझती हो. क्या नाम है?
Grace. Which grace? Is divine grace. This is grace. And only आप? वृत्तिका. वृत्तिका. चैतन्य चंद्र की जय. हरे कृष्ण. सो बात क्या कर रहे थे? भगवद गीता में संकीर्तन लिखा है क्या, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा और प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में किया? तो श्रील प्रभुपाद ने 14वां श्लोक 9वें अध्याय का बताया उनको कि भगवद गीता में संकीर्तन लिखा हुआ है. तब हमने अभी एक श्लोक कौन सा पढ़ा? सततम. सततम का मतलब सदा के लिए, और सततम का एक दूसरा अर्थ है सतंत्र. स का मतलब साथ में, तंत्र का मतलब जैसे नारद जी बजाते हुए वीणा कीर्तन करते हैं, इसका मतलब कीर्तन मंजीरा के साथ, खड़ताल के साथ, मृदंग के साथ कीर्तन करना, ये संकीर्तन है. क्योंकि वैसे अगर कीर्तन कहें तो भगवत गीता की कथा भी कीर्तन है, भागवत भी कीर्तन है, लेकिन स्वतंत्र के अंदर दो माना निकलती है. एक तो सदा के लिए करना और एक मृदंग और खड़ताल के साथ करना, और जैसे नारद जी करते रहते हैं, तो दोनों इसके अर्थ निकलते हैं. सततम कीर्तन तो माम, ये माम कह के भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सबके कीर्तन के ऊपर बैंड लगा दिया. मेरा कीर्तन करना है बस, और किसी का नहीं. दिस इज वे, सकारात्मक बोलना, पॉजिटिव, मेरा करना है, इसका मतलब और किसी का नहीं करना है. सततम कीर्तन तो माम. और फिर हमने ये प्रश्न पूछा कि क्या राधा रानी या चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन भगवत गीता में है क्या? हाँ. दैवीम प्रकृति में आश्रिता. दैवीम प्रकृति में आश्रिता का मतलब चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया है, राधा रानी का शरण लिया. और राधा रानी का शरण लिया है, वही राधा रानी कलिकाल में उस भाव, चैतन्य महाप्रभु उस भाव में आया है. तो संकीर्तन कौन करा रहा है? चैतन्य महाप्रभु करा रहा है. तो दोनों श्लोकों को मिलाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु और संकीर्तन दोनों बहुत स्पष्ट इन दो श्लोकों में दिख रहा है. ये उस दिन हमारे को जैसे एक रिविलेशन हुई, क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा प्रेफेस में कि भगवत गीता में भी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है. तो हमने कहा कहाँ है, ऐसे सोचने लगे तो ये दो श्लोक हमारे को दिखाई दिए जिसमें दोनों बातें चैतन्य महाप्रभु को जो है भगवत गीता में दिखा रहे हैं. क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कोई भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता. कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा अति आवश्यक है. इसलिए बहुत से दिव्य देशम दक्षिण भारत में है. आपके दक्षिण भारत में दिव्य देशम तो 108 में से कम 100 तो उधर होंगे. 100 साल में वहां है, 108 इस तरफ है, नॉर्थ में कहीं मिलेंगे आपको. फिर भी वहां चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 4 साल पूरा दक्षिण भारत में भ्रमण किया और ऑलमोस्ट उन सब जगहों पे गए जहां बड़े बड़े दिव्य देशम थे, और उन लोगों के ऊपर कृपा करके नाम संकीर्तन का जो है इनॉग्रेशन किया. वहीं क्यों गए ज्यादा? बिकॉज द पीपल वर डिवोटीज ऑफ विष्णु. द वैष्णव है मधुर संप्रदाय साउथ इंडिया. मधुर संप्रदाय का बेस कहाँ है? उडुपी साउथ इंडिया. रामानंद संप्रदाय का बेस कहाँ है? श्रीरंगम साउथ इंडिया. और विष्णु स्वामी के वल्लभ आचार्य वो भी दक्षिण भारत में आंध्रा के हैं. सिर्फ निम्बार्क आचार्य जो है ये उत्तर भारत में. तो ये वैष्णव संप्रदाय तो है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है. तो विष्णु भक्ति तो कर ही रहे, लेकिन कृष्ण प्रेम वाला जो विशेषता, कृष्ण प्रेम जो हमारा लक्ष्य है, वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु से मिल सकता है.
और सारा प्रचार श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता में कहा, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तभी तो सबका भला होगा ना। तो कहाँ है कृपा? तो ये श्लोक हम आज प्रभुपाद के परपट को थोड़ा सा पढ़ के इसका रसास्वादन करते हैं। महात्मानस्तु, ये जो तू शब्द है छोटा, तू का मतलब बट, इसका मतलब अब ये सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। जो इससे पहले सब्जेक्ट चल रहा था वो था मूर्खों का जब वो तो मूर्खों की बात थी। अब मूर्खों की बात नहीं हो रही, अब महात्माओं की बात हो रही है। ये टू सब्जेक्ट चेंज, झूठ टू मीन्स चेंज ऑफ सब्जेक्ट। बट तो महात्मास्तु माम पारथ, भगवद गीता में सबसे ज्यादा कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया है पार्थ। आप गिनती करेंगे, पार्थ नंबर 1 संबोधन है, ओवर 30 टाइम्स से गिन लीजिए। और दूसरे नंबर पे कौन थे हैं? तो जब पार्थ नाम कृष्ण अर्जुन का लेते हैं तो एग्जैक्टली ही पैट हिज बैक, उसकी पीठ के ऊपर हाथ मार के कहते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरी बुआ के लड़के, मेरे कजन ब्रदर। प्रथा तो दिस इंटीमेसी, जब कृष्ण के हृदय में बहुत प्रेम अर्जुन के लिए प्रकट होता है तब पार्थ शब्द का जो है संबोधन करते हैं। महात्मानस तो माम पारथ, ये माम लगेगा देवम प्रकृति से। पार्थ पहले आ गया, हे पार्थ, जो महात्मा होते हैं ना, दूसरे जो महात्मा होते हैं, इसका मतलब ये है जो मूर्ख नहीं है और जो महात्मा होते हैं ना दूसरे, वो मेरी देवीम प्रकृतिम आश्रिता, वो मेरी देवी प्रकृति का शरण लेते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला श्लोक लिखा है कि वो किसका शरण लेते हैं? लास्ट लाइन पढ़िए, आसुरीम प्रकृतिम का शरण लेते हैं। वो आसुरी प्रकृति का शरण लेते हैं और ये मेरी देवी प्रकृति का शरण लेते हैं। तो ये कंपैरिजन है। तो मेरी देवी प्रकृति का शरण लेते हैं। तो मेरी देवी प्रकृति क्या है, उसका शरण कैसे लेना है? तो भगवान की देवी प्रकृति कौन सी है? वैसे आपको आश्चर्य लगेगा कि जहां बाह्यंग प्रकृति का वर्णन है वहां भी देवी शब्द लिखा हुआ है। कैसे लिखा है? दैवी है गुणमयी मम माया दुर्ते, वहां भी देवी लिखा है। वहां देवी का मतलब है मुझ डिवाइन की वो माया है, और यहां मेरी देवी प्रकृति जो है वो इंटरनल पोटेंसी का वर्णन करती है। तो ये दैवी प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण की दैवी प्रकृति सच्चित आनंद, जो भगवान की शक्ति है, सत्य, चित्त और आनंद। इसमें ये जो दो प्रकृति है, चित्त और आनंद, चित्त असल में रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, और हमको जो ज्ञान देता है वो देता है गुरु। और गुरु होता है किसका रिप्रेजेंटेटिव? बलराम जी का। तो चित्त बलराम जी की ओर इशारा करेगा, और आनंद राधा रानी, और दूसरा गुरु किसका प्रतिनिधि है? राधा रानी का। तो देवीम प्रकृतिम आश्रिता का असल में मतलब ये है, जो नित्यानंद राम और राधा रानी के आश्रित है उनका शरण लेता है। इसका अगर बहुत अब प्रैक्टिकल में आप कहेंगे हम राधा रानी का शरण कैसे लें? भाई सीधा राधा रानी का, हम तो हरे कृष्ण मंत्र में रोज राधा रानी को ही तो प्रार्थना करते हैं, हरे राधा रानी है।
और सभी गुरु तत्व ही असल में एक वृंदावन में अटल राय चुंगी, अपना नाम सुना होगा, अटल राय चुंगी बोलते हैं आजकल। चुंगी का मतलब टैक्स जहाँ कलेक्ट होती है, वो तो आज का नाम है। पुराना नाम उसका है अटल वन। क्या नाम है? अटल वन। वहाँ एक लीला हुई है राधा कृष्ण की। कृष्ण का एक टीम, कृष्ण का एक टीम बलराम जी का, आपस में खेलते थे, कुश्ती करते थे एक दूसरे को गिराने के लिए। तो एक दिन बलराम जी आए नहीं, बलराम जी उस दिन एब्सेंट थे। अब कृष्ण के साथ कुश्ती करने के लिए किसको तैयार किया जाए? प्रायः गोपियां ग्वालों का वेश धारण करके घर से निकल के कृष्ण जहाँ जाते थे गैया चराने, वहां पीछे जाती थी देखने को, पीछे दिखती थी। उस दिन सबने राधा रानी को बलराम जी के कपड़े पहना दिए। अब राधा रानी को बिलू धोती पहना दी, बिलू पगड़ी पहना दी, और उसका रंग तो गोरा है दोनों का, और राधा रानी और कृष्ण की कुश्ती हो रही। अब राधा रानी का स्पर्श हुआ कृष्ण को, तो कृष्ण हार गए, राधा रानी जीत गई। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो कृष्ण का, ये बलराम जी ऐसा, तो अब कृष्ण पहचान गए, ये तो बलराम नहीं है, तो राधा रानी। तब कहने लगे कृष्ण अब इसी रूप में तुम यहां रहो। अटल का मतलब ऑलवेज, अटल का मतलब सदा के लिए। तो एक मंत्र है परिक्रमा में, उसका नाम है गोरे दाऊजी। क्या नाम है? गोरे दाऊजी। उसमें असल में राधा रानी है जो बलराम जी के वेश में है। तो ये गोरे दाऊजी असल में गुरु तत्व है। तो बलराम जी भी हैं और राधा रानी है। तो गुरु के अंदर जो शिक्षा दे के डिसिप्लिन करने का काम है, ये बलराम जी का है। और जो गुरु करुणा और कृपा करते हैं, वो राधा रानी का है। कृपा और करुणा राधा रानी से आती है और डिसिप्लिन बलराम से आता है। वो हल है हाथ में, जो हमारे अंदर जितने भी दोष हैं उनको खींच के बाहर निकालते हैं, और मूसल से हम कहीं गलत रास्ते में जाएं तो सीधे रास्ते पे लाते हैं। तो डिसिप्लिन करना जो गुरु का काम है, प्रभुपाद जी कहते व्हाट कैन आई डू, आई हैव टू डिसिप्लिन यू। गुरु का काम है, क्या करते हैं? सख्ती करनी पड़ती है, ये बलराम जी का काम है। लेकिन जो करुणा है वो तो शेप देते हैं। आपने देखा है कभी वो जो पार्ट मेकर होता है, जो मटके बनाता है, क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार को क्या बोलते हैं आप? पार्ट मेकर। हाँ, पार्ट मेकर। वो जब कोई मटका बनाता है तो क्या करता है? बाहर से ठा 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 बाहर से आवाज आता है, लेकिन अंदर से एक बहुत ऐसे कोमल हाथ होता है, अंदर से सपोर्ट होता है, ऊपर से मारता है, तब शेप बनती है उसकी, तब वो देखने में आता है। तो ये अंदर से हाथ जो है हमारी आध्यात्मिक जीवन में, वो राधा रानी है, और बाहर से ठा ठा है बलराम जी है, तब हमारा मटका ठीक बनता है। तो ये दोनों की, ये गुरु के दोनों काम है, दोनों का ये मिश्रण है। देवी प्रकृति में चित्त और आनंद। अब फिर अगर भक्ति रसामृत सिंधु कभी पढ़ेंगे, पढ़ाई है आपने, भाव भक्ति हम सबके हृदय में पहले से बीज के रूप में पड़ी है। उसको अंकुरित होने के लिए, जैसे बीज आप बोएंगे तो उसको लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। तो उस भाव भक्ति के बीज को फ्रक्टिफाई होने के लिए, स्प्राउट होने के लिए, प्रकट होने के लिए दो शक्तियां चाहिए। कौन सी? संवित और हलादेनी। पहली कौन सी है?
सेंद्री, सेंद्री नहीं, संवित और हलादनी, ये दो शक्तियां जब किसी शुद्ध वैष्णव के हृदय से हमारे हृदय में प्रवेश करेंगी तब भाव जागृत होगा, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी भक्ति में है डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग। और शुद्ध भक्त की कृपा जो है उसका मतलब है उसके हृदय से संवित और हलादिनी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी, तब हमारे भाव का उदय होगा। साधन भक्ति हमारी क्या करेगी? परम पूज्य होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलते हुए कह रहे थे, आपने समोसा बनाना है, आपने आलू बॉयल कर लिए, आपने आटा रोल बना लिया, मसाला अंदर डाल दिया, आपका समोसा तैयार है। लेकिन आप बनाओगे जब घी होगा तब फ्राई करोगे ना। अब घी लाओगे कहाँ से? आपके पास है नहीं। तो आपके साधन भक्ति में समोसा तो तैयार हो गया, लेकिन वो पकेगा तब जब घी होगा। अब आपको घी वहां से मांगो जिसके पास है। और मतलब ऐसे जिस महात्मा के हृदय में ये दो शक्तियां, दैवी प्रकृति जिसके हृदय में पहले प्रकट हो चुकी है, संवित और हलादिनी शक्ति, उसको कहो हमारे को थोड़ा दे दो, कृपा करके घी दे दो, तब हमारा समोसा तैयार हो। समोसे के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही। बोला भगवान जब ये दुनिया बना रहे थे ना, तो समोसे की तरह पहले डाला तो जल्दी निकाल दिया, तो थोड़े सफेद निकले, उनको यूरोप में भेज दिया। दोबारा बोला ये कच्चे रह गए हैं शायद, तो पक्के करें। तो थोड़ी देर के लिए ज्यादा रहे, काले हो गए, अफ्रीका भेज दिए। तब सोच समझ के कहा न ज्यादा कच्चे होने चाहिए न पक्के होने चाहिए। जब बिल्कुल मीडियम रियल कलर हुआ तब भारत में भेज दिया। तो ये तीन समोसे ऐसे बनाए। तो न पक्के हैं न कच्चे हैं, बिल्कुल मीडियम है। इसलिए भारत भूमि तिहाइला मनुष्य जन्म, जन्म सार्थक करी कर पर पुकार। क्योंकि ये न ज्यादा कच्चे है न ज्यादा पक्के हैं, ये ठीक है। ये सदुपयोगी हैं। अगर जन्म सार्थक करेंगे तो परोपकार करेंगे। सो महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता। देवी प्रकृति का आश्रित लिया है, इसका मतलब बलराम जी और राधा रानी का आश्रित है, और इसका मतलब है गुरु का आश्रय लिए, जो उन दोनों का प्रतिनिधि। ये इसका और ज्यादा गहरा अर्थ है इस बेसिकली। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृति भजन्ते अनन्य मनसो। अब जब गुरु की कृपा होगी तो हम करेंगे सेवा। भजते शब्द जो भजते है ना, उसका अर्थ है सेवा। और भगवान से हरे कृष्ण मंत्र में हम मांगते ही हैं सेवा। तो भजते जो धातु भज है ना, भज भात, भात समझते, चावल, चावल जो है ना पकता है उसको भात बोलते हैं। भज भात भक्त, इन सब एक ही रूट से निकलते हैं। अच्छा, चावल को आपने देखा है, चावल पकाते हैं तो एक निकाल के बाहर देखते हैं कि पक्का सिद्ध हो गया, अब कुछ कच्चा नहीं रह गया। तो जो चावल सिद्ध होता है उसको भात कहते हैं। चावल अगर थोड़ा भी कच्चा हो गया ना, खा नहीं सकेंगे। वो एक कहावत है साधु संतों में, चावल की कणी और भाले की अणी पेट फाड़ देती है। चावल की अणी मीन्स चावल अगर पूरा पका नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीटली कुक्ड, एंड इफ देयर इज सम पीस लेफ्ट, वो पेट फाड़ देगा। और भाले की अणी मीन्स स्पीयर का जो फ्रंट होता है, इन दोनों को कंपेयर किया गया है। सुभात पका होना चाहिए। भक्त जो है
वो भी पूरी तरह से निमर और पका होना चाहिए, उसके अंदर भी अहंकार नहीं होना चाहिए, तब उसको भक्त कहते हैं। तो तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देने का भक्त की परिभाषा है भात की तरह पूरी तरह पका हुआ, उसके अंदर कोई भी थोड़ा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। और भज धातु का अर्थ है सेवा करने वाला, निम्रता से सेवा करने वाला। भजते माम, अब दोबारा माम आ गया, दो माम इस श्लोक में, माम दो है। पहला माम कौन सा है? मेरी देवी प्रकृति। दूसरा क्या है? मेरा भजन, भजते माम। तो दोनों बार कृष्ण ने अपनी छाती को ऐसे कह के कहा कि मेरी प्रकृति का और शरण लेगा और मेरा भजन करेगा। तो भगवान का भजन कौन कर सकता है? भजन का जनरली भजन का हम कहते हैं जप करते हैं, इसको भी भजन कहते हैं। भाई हमारा भजन कैसा चल रहा है? वैसे साधु की भाषा में भजन का मतलब है सेवा, भगवान की सेवा कैसे चल रही है। इसे हमारे जप को कहते हैं सुमरण कैसे चल रहा है आपका, सुमरण कैसे चल रहा है। ये तो सुमरण है, हमारा जप जो है ये सुमरण है। भजन सेवा है, भगवान की सेवा, भोग लगाना है भगवान को, अर्चा विग्रह की सेवा है, वो भजन है, उसको भजन कहते हैं। भजते माम अनन्य मनसो, मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, अनन्य मनसो, मन और कहीं नहीं जाता है, और निरंतर मेरी सेवा करते। अनन्य के दो माना है। अनन्य का अर्थ है न अन्य, मतलब नो एनीबडी एल्स, और कोई नहीं। और दूसरा अनन्य का मतलब है निरंतर या कंटिन्यूस। अनन्य की दो माना कॉमनली समझनी चाहिए। नित्य का मतलब एवरीडे, रोज करता है, और दूसरा इसका अर्थ है और किसी का नहीं, मैं ना करता है। इसके ऊपर एक जनरल मेरा अपना कमेंट है, कभी बोलता हूं तो ऐसे लगता है भाई कृष्ण को जब बोलता है मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, मुझसे प्रेम करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, ये कृष्ण बहुत सेल्फिश है। हाँ, और किसी की नहीं, मेरी, बार बार कहता है न अन्य, न अन्य, और किसी का नहीं, मेरा 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 सेवा करो। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई क्यों आप सिर्फ कृष्ण की सेवा क्यों करते हो? ये लोग पूछते हैं आपको, कई बार पूछते नहीं, तो हम उसको हमारी अपनी भाषा में जवाब देते हैं। आप सुनना चाहते हैं हम क्या जवाब देते हैं? हम उससे पूछते हैं भाई तुम्हारा बेटा है? बोलते हाँ है ना। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा बेटा तेरी सेवा करे, तुमसे प्रेम करे, तेरी आज्ञा का पालन करे, तुम्हारी इच्छा ये है कि नहीं है? हाँ ना, मेरा बेटा है तो मेरी करे ना। तो मेरे दुनिया में ना किसका बेटा है? भगवान का। तो भगवान कह रहा है मेरी सेवा करे, कौन सा गलत कह रहा है? भाई कोई गलत कह रहा है क्या? भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना, पिता हम अस्य जगत, तो कहा है ना, तो पिता है कि नहीं जगत का? तो कहता है, तो कौन सा गलत कह रहा है? फिर भी वो थोड़ा सोचेगा, ठीक है। और तब हम बहुत एक हैवी ड्यूटी स्टेटमेंट बोलते हैं उनको, ताकि उसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे आ जाए। अरे हम बोलते तुमने शादी किया, बोला किया, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी तुमसे प्रेम करे, तुम्हारी सेवा करे, या अरे या क्या कहता है, मेरी पत्नी मुझसे सेवा करे, मुझसे प्रेम करे। अरे वो जगत का पति है, तुम सब उसकी पत्नी हो, ठीक कह रहा है मुझसे प्रेम करो, तो तुम क्यों नहीं मानते इस बात को? अरे भाई सीधी सी बात है, पूछ लो कि किससे करे, आप क्या कहा चाहते हो? ये सत्य है कि नहीं? भाई वो जगत का पति भी है, जगत का पिता भी है, तो वो कह रहा है तो क्यों, कौन सी गलत बात कह रहा है? ठीक कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और जिसने उसको समझ गया वो गोपियां, नहीं समझे वो टोपी पहन के घूम रहे। बहुत आसान है। हरे कृष्णा। missing out your nice lecture because they are not able to understand also.
Please also include little bit of here and there. क्या बोला? Oh, English. English, H-I-N-G-L-I-S. Hindi and English together. I could see like some of them were really not able to. Yeah, yeah. The fun was in Hindi only. क्या बोला? The fun was in Hindi only, brother. The fun was in Hindi. I am telling him the fun was in Hindi only. Yeah, choose Hindi में. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What actually I was telling is the meaning of Ananya is Krishna says, only serve me, love me, worship me, engage in my service. So people oftentimes ask why Krishna is selfishly saying me, why not others? So I was explaining my explanation that every father wants his son to serve and obey him. Every husband wants his wife to love and serve him. So we are actually children of Krishna and he is our actually Pati. And there is one full verse Srila Prabhupada has quoted, Dhiyam Pati Shrihi Pati. If you remember, there's a full one verse about Pati. And this verse is in, I think, 2nd chapter of Bhagavad Gita, or 3rd chapter of Bhagavad Gita. Well, okay. So, Krishna is Pati. So if he is saying this, he is perfectly alright. So we have to accept this. So, हम कौन सी लाइन पे पहुंचे थे? अब तो गीता के अभी श्लोक का सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. प्रभुपाद जी का परपट पढ़ते हैं. महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माश्रा भजन्ते अनन्य मनसो. Ananya manso, mind not deviated to anybody else or any other process, then bhakti. Bhajate also means bhakti. Bhajana, bhakti. Path, bhakti. And service to me. Ananya manso and bhajate means this. No other path, no other person. Gyatva, knowing. जानते, ज्ञातवा. फिर माम आ गया. माम है ना, तीसरा माम है. मैं पढ़ो जरा क्या लिखा है. भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्. ज्ञात्वा. What the ज्ञात्वा means? Knowing. Bhuta means all living entities. जीव सारे. Bhut Adi means I am the beginning of all living entities. मैं सबका, इसका मतलब है I am the father of everybody. भाई मेरी सेवा करें क्योंकि मैं पिता हूं और मेरी शक्ति का शरण ले जो उनकी माता है. तो प्रभुपाद used to say Krishna, Radha and Krishna is God. Prabhupada never said Radha and Krishna are God. Radha and Krishna is God. तो भगवान का माता का रूप है राधा रानी और पिता का रूप है कृष्ण. सो दोनों ही एक हैं, दो नहीं है. राधा कृष्ण एक तनु है, एक है. राधा कृष्ण एक है, दो नहीं है. शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड एनर्जेटिक. सो राधा कृष्ण एक तनु है, दो देह धरी. They appear in two bodies to relish the prem, to relish the devotional ecstasy. लेकिन है एक. इसके ऊपर फिर मैं पुरानी ओल्ड एक स्टोरी याद आ रही है. राधा कृष्ण एक है. दैट्स राइट. चैतन्य चरितमृत में लिखा है राधा कृष्ण एक है. तो कुंभ मेला इलाहाबाद में जमुना माता जी, प्रभुपाद की शिष्य जमुना माता जी, जिनका गोविंदम आदि पुरुषम हम सुबह रोज मंगल आरती के बाद और दर्शन आरती में सुनते हैं.
और मधुद्वेष स्वामी ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क में उन्होंने, और सारे न्यूजीलैंड में उन्होंने इस्कॉन की इस्टेब्लिशमेंट की सारी सेवा की थी। ये दोनों both of them were discussing in कुंभ मेला इलाहाबाद, प्रभुपाद के साथ गए थे। मधुद्वेष स्वामी was saying there is no difference between राधा and कृष्ण, में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि चैतन्य चरित्र में लिखा पड़ा है। लेकिन जमुना माता जी ने कहा there is a difference, दोनों में अंतर है, और दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, हार्ड डिस्कशन हो गया। राधा कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, राधा कृष्ण में डिफरेंस है। तो बालकृष्ण स्वामी महाराज सुन रहे थे दोनों को, वो चले गए प्रभुपाद जी के पास। श्रील प्रभुपाद ये दोनों डिवोटी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मधुद्वेष महाराज कहते हैं कि राधा कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रभुपाद ने कहा यस, चैतन्य चरित्र में लिखा है राधा कृष्ण एक तनु है, दो दे दल। तो फिर तुम्हारे कृष्ण महाराज ने कहा माता जमुना कह रही है देयर इज ए डिफरेंस। प्रभुपाद ने कहा यस देयर इज ए डिफरेंस। बोला क्या डिफरेंस है? बोला राधा कृष्ण, sorry I think there's a little different story। वो कृष्ण बलराम का, ये चलो ये स्टोरी को भी पूरा करते हैं इस तरीके से। ये स्टोरी ऐसे हुई, वो कृष्ण बलराम वाले को बाद में आते हैं। जहाँ कलकत्ता में हमारा एक बड़े लैंडलॉर्ड बिग लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टी वाज यूज्ड एज ए कृष्ण टेम्पल, और लैंडलॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। और प्रभुपाद जी का पहला एक शिष्य जो बंगाल गया था और बंगाली सीखा था, अच्युतानंद स्वामी, उसको बता रहा था दूध और चीनी, मिल्क एंड शुगर, दोनों को मिलाया रसगुल्ला बन गया। रसगुल्ला अच्छा होता है ना? बोला हाँ। बोला ऐसे राधा कृष्ण दोनों को मिलाया चैतन्य महाप्रभु ने कहा मीठा है। So he said Chaitanya Mahaprabhu is like रसगुल्ला। तो अच्युतानंद महाराज समझा नहीं, आके प्रभुपाद से पूछा। प्रभुपाद ये बोलता है कि रसगुल्ला चैतन्य महाप्रभु, तो आप मुझे बताइए पहले क्या था? बोला पहले दूध और चीनी था तब रसगुल्ला बना ना, तो पहले राधा कृष्ण था ना तब रसगुल्ला बना ना। सो ऑलरेडी देयर वाज राधा एंड कृष्ण। फिर भी पूछा अच्युतानंद स्वामी, फिर दोनों में से महान कौन? भाई राधा कृष्ण अलग या चैतन्य महाप्रभु, या राधा या कृष्ण, कौन? प्रभुपाद थोड़ी देर पास फॉर सम टाइम, और फिर ऐसे वाल के ऊपर पिक्चर लगी हुई थी, और पिक्चर में देखा कि कृष्ण राधा रानी के चरण दबा रहा है। पापा ने राधा रानी इज हाई, कृष्ण इज सर्विंग हर लोटस फीट। और फिर प्रभुपाद ने दूसरा पिक्चर को देखा, नंद बाबा के चप्पल सैंडल कृष्ण उठा, देखो नंद बाबा इज हायर देन कृष्ण। So Prabhupada then concluded devotee is higher than Krishna, because Chaitanya Mahaprabhu came in a mood of devotee, therefore he is really higher than Krishna in giving Krishna prema. तो भक्त भगवान, and the proof for this, इसका proof कहाँ है? भगवद गीता। Arjuna is sitting high and Krishna is sitting low. भाई कृष्ण नीचे बैठा है ना, सारथी, he is a chariot driver, he is a driver, और अर्जुन कहाँ बैठा है? हाँ ऊपर बैठा है। तो बड़ा कौन हो गया? पूछोगे बड़ा कौन है? एक बार पोप कहीं से कृष्ण का उतरा, तो उसकी गाड़ी ड्राइवर बाहर लेके खड़ा था। उसका मूड हो गया कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। वो गाड़ी पोप चलाने लगा तो रेड सिग्नल पे खड़ा नहीं हो रहा है, कोई रूल नहीं। तो पुलिस वाले ने फोन किया कि भाई बड़ा आदमी गाड़ी चला रहा है, मैं रोक नहीं सकता हूँ। बोला कौन है? बोला जिसकी गाड़ी पोप चला रहा है, पीछे बड़ा आदमी बैठा हुआ है। भाई पोप इज ड्राइविंग ए कार ऑफ ए पर्सन, इट मीन द पर्सन सिटिंग बिहाइंड इज हायर देन पोप एंड ही वाज ड्राइवर। तो बड़ा कौन? पोप के ड्राइवर पोप, लेकिन वो गाड़ी चला रहा था।
तो पुलिस वाला उसको चालान नहीं कर रहा था। मिनिस्टर को बोला, बड़ा आदमी, बोला कौन है मिनिस्टर? नहीं नहीं नहीं, जिसकी गाड़ी पोप चला रहा है वो इतना बड़ा है, वो कुछ भी नहीं था वो। सो बेसिकली द डिवोटी इज मोर पावरफुल एक्चुअली इन गिविंग कृष्ण देन कृष्ण हिमसेल्फ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में आया, तब को हमको भक्ति मिली। तो पुरानी स्टोरी उसको, कृष्ण और बलराम में कोई फर्क नहीं है, वो राइट स्टोरी। भाई बलराम, दिस इज आल्सो ए वर्स इन चैतन्य चैतन्य। कृष्ण बलराम केवल कलर का डिफरेंस है, एक सांवला है एक गोरा है। तो ये प्रभुपाद ने कहा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर कहा दोनों में डिफरेंस है। बोला क्या? बोला राधा रानी के साथ तो केवल कृष्ण रासलीला कर सकता है, बलराम तो नहीं कर सकता। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि तुम्हारे कृष्ण महाराज ने पूछा, हाउ कैन बोथ बी करेक्ट? भाई दोनों कैसे सही हो सकते हैं? बोला यू आर आल्सो करेक्ट। कि तुम भी सही हो, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? हाउ कैन बोथ बी करेक्ट? देन गिरिराज महाराज when narrating this story he said, इसका मतलब ये है कि हम सब साधक, when we are practitioner we can realize something according to our realization। जैसे एलिफेंट को 5 अंधे देख रहे हो, तो एलिफेंट का कोई पांव को देखेगा, लेग को बोला ये दिस लाइक ए पिलर, इज राइट आल्सो बट इज नॉट राइट। कान को देखेगा, इज लाइक ए फैन, इट्स नॉट फैन बट इज आल्सो राइट। So similarly, we have a realization of Krishna consciousness according to our surrender, and that is also right, and that's also not right. So Mahatmanastu mam parat devim prakritim ashakta bhajate ananyamanso gyatva bhutadim avyayam. Bhutadim means I am the source of all creation. ऐसे लिखा है, कुछ और लिखा है। और अव्ययम का मतलब inexhaustible, अविनाशी। अव्यय, you know what is the word अव्यय means? व्यय means आप में बहुत सारे यहाँ चार्टर अकाउंट है, यहाँ मिडिल ईस्ट में चार्टर अकाउंट ज्यादा है, तो उसमें व्यय किसको कहते हैं? खर्चे को। व्यय इन संस्कृत मीन्स एक्सपेंडिचर। इफ यू हैव से 500 note, if you spend 200 you have only 300 left, तो इसको कहते हैं व्यय। 200 व्यय हो गया। और अव्यय का मतलब यू स्पेंड 200 स्टिल इट रिमेन 500, इसको कहते हैं अव्यय, जिसमें से कितना भी निकालो उतना ही रहेगा। सो इतनी सारी क्रिएशन करने के बाद कृष्ण इज सेम। ऐसा नहीं कृष्ण से कुछ निकल गया सब और कृष्ण कम हो गया, नो, ही इज अव्यय, इज इनएग्जॉस्टिबल। तो महात्मा कौन है? जिसने भगवान की अंतरंग शक्ति का शरण लिया है और भगवान का अनन्य मन से भजन कर रहा है और भगवान को जानता है वो हम सबका आदि और अविनाशी है। इसकी ट्रांसलेशन ये हो जाएगी। अब मैं प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं इस श्लोक की। O son of Parth, those who are not deluded, the बट की, दिस इज फॉर बट, ये जो बट शब्द था ना तू, उसके लिए प्रभुपाद ने ये लाइन लिखी, दोज हु आर नॉट डिल्यूटेड। ये बट का डेफिनेशन है। द ग्रेट सोल महात्मा आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर देवीं प्रकृतिम आश्रिता। दे आर फुली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस भजते अनन्य मनसो, बिकॉज दे नो मी एज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ओरिजिनल आदि and inexhaustible avyayam. So when you read actually translation, you try to put the Sanskrit word in translation where Prabhupada has put. And it takes few minutes really. Then you correlate both, then you think you are understanding it. If you just read it, it will never stick in your mind. अब इसको ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ऊपर संस्कृत और ट्रांसलेशन दोनों को मैच करेंगे, कहाँ प्रभुपाद ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। या एक चीज देखो, ये लिखिए, दे आर फुल्ली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। फुल्ली किसके लिए लिखा है?
और डिवोशनल सर्विस में एंगेज किसके लिए लिखा है? व्हाट इज दैट वर्ड इन संस्कृत? अनन्य को फुली लिखा है और भजते को डिवोशनल सर्विस लिखा है। और अनन्य को मतलब फुली का मतलब नॉट एनीवेयर एल्स, कंप्लीटली मी। अनन्य का मतलब फुली मीन्स कंप्लीटली वन पर्सन, नॉट गोइंग देयर। सो better you do little exercise in mind, see in Sanskrit word and see in translation how Prabhupada has put these words really in the translation. अब तू कहाँ लिखा है? Those who are not deluded. ये संस्कृत, ये श्लोक में है ही नहीं, महात्मानस्तु माम पार्थ, ये तू की वे, this is the explanation of word तू, those who are not deluded. तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है संस्कृत में, श्लोक में वर्ड नहीं है ये। अब प्रभुपाद का मैं परपट पढ़ रहा हूं। इन दिस वर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ महात्मा इज क्लियरली गिवन। महात्मा किसको कहते हैं वो इस श्लोक में ठीक तरह बताया है। द फर्स्ट साइन ऑफ महात्मा इज दैट ही इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन डिवाइन नेचर। ही इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन डिवाइन नेचर। इसका मतलब क्या है बेसिकली? व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, नेक्स्ट लाइन विल एक्सप्लेन। And how is this affected? How one can be situated in divine nature? प्रभुपाद ने अभी ये नहीं बताया डिवाइन नेचर में सिचुएटेड को क्या किसको कहते हैं, but how it is affected, how one can be situated in divine nature. Prabhupada writes that is explained in the 7th chapter. और कौन सा आपका विचार में? Guess which words Prabhupada will say. Because since the same thing is nature, so the words must be nature. Devi esh gunmai maya dutta yo mam prapandyante maya metantarantite. So how we can become Mahatma? Surrender. जो मेरा शरण लेता है। अब वहां कहते हैं मेरा शरण लेता है और यहां कहते हैं मेरी प्रकृति का शरण लेता है। Can you see the difference between the two? मेरा शरण लेता है 7वें में, मेरी प्रकृति का शरण लेता है यहां। ये दो स्टेटमेंट अलग क्यों हैं? Why are these two statements are separate? गीता प्रोग्रेस है, गीता प्रोग्रेस आगे बढ़ता जा रहा है। मेरा शरण ले, पहले कहा मेरा शरण ले। कैसे मेरा शरण ले? मेरी प्रकृति के द्वारा मेरा शरण ले। और फिर आगे जाएंगे तो कहेंगे मेरी प्रकृति के द्वारा मेरा शरण ले का मतलब मेरे रिप्रेजेंट के द्वारा मेरा शरण ले। यू शुड टेक माय शेल्टर थ्रू माय एनर्जी। प्रभुपाद इन इंग्लैंड व्हेन ही सेड इफ यू वांट टू ऑफर समथिंग टू कृष्णा, आप कृष्ण को कुछ देना है, इफ यू नाइस फ्लावर यू गिव इन द हैंड ऑफ राधा रानी एंड रिक्वेस्ट राधा रानी प्लीज गिव दिस टू योर डियर कृष्ण। राधा रानी कृष्ण को देगी तो कृष्ण स्वीकार करेंगे। सो भगवान श्री कृष्ण का शरण लेने का मतलब भगवान की देवी प्रकृति का शरण लेना। देखो दिस इज प्रोग्रेस ऑफ भगवत गीता। देखो ना वहां मेरा शरण। अब भगवत गीता का एक श्लोक पहले आएगा, क्या है उसमें? सब ब्रह्म 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 है। क्या कौन सा श्लोक है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। लेकिन उसके बाद 9वें अध्याय तक आएंगे, अहम कर दो, अहम यज्ञ अहम, वो तो वहां ब्रह्म को अहम कर दिया जाए। जो ब्रह्म था वो मैं हूं। सो गीता इज ए प्रोग्रेशन। गीता को देखना है तो कंटिन्यूटी में देखना पड़ेगा। तो यहां प्रभुपाद जी लिखते हैं हाउ कैन समबडी मी इन सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन में कैसे आएगा? डिवाइन नेचर में कैसे आएगा? बाय सरेंडरिंग प्रोसेस, बाय सरेंडरिंग प्रोसेस। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं that is the qualification. One can become free from the control of material nature as soon as he surrender his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula. Being marginally potency, as soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. इसका मतलब क्या है? How can we be free from 3 modes of material nature? By process of surrender. ये 7वें अध्याय में है।
लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है भगवत गीता में। क्लियर कहाँ होगा? 14वें अध्याय में, 14 चैप्टर में ये क्लियर होगा कि 3 प्रकृति के गुणों से फ्री कैसे हो, सरेंडर करने का प्रोसेस क्या है। याद है? बताइए। माम च यो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतैते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। नाउ यू नो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड महात्मा का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मभूता। He is transcendently situated means Brahma-bhuta. And how he can be Brahma-bhuta? By surrendering. And how to surrender? By rendering devotional service. अब डिवोशनल सर्विस किसके अंडर है? 3 चीजें, भगवान, भक्त और भक्ति। भगवान, भक्त और भक्ति, all 3 are under the jurisdiction of internal potency. ये तीनों भगवान की अंतरंग शक्ति में, ये बाहरंग शक्ति में नहीं है। दे आर बियॉन्ड दी मटीरियल एनर्जी। भक्त, भगवान और भक्ति। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। भक्ति इज स्वरूप शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति। ये जो सच्चित आनंद है, इसी से भक्ति, दैट इज भक्ति। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। सो महात्मा होने के लिए भगवान की स्वरूप शक्ति में स्थित होना पड़ेगा, उसका शरण लेना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं, देन ही इज सिचुएटेड इन डिवाइन, द गाइडेंस ऑफ द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर, ऑफ गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर। Guidance of the spiritual nature is called देवी प्रकृति और डिवाइन नेचर। अब देखो वर्ड को पढ़ो, गाइडेंस ऑफ ए डिवाइन नेचर। अब बताओ डिवाइन नेचर गाइड कैसे करेगा? अब प्रभुपाद ने जो वर्ड लिखा है उसको मेडिटेट करो, गाइडेंस ऑफ डिवाइन नेचर। बताओ डिवाइन नेचर कैसे गाइड करेगा? हाउ द डिवाइन नेचर विल गाइड अस? थ्रू गुरु। सीधी सी बात है, वेरी सिंपल। डिवाइन नेचर विल गाइड अस थ्रू द डिवाइन इंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रिप्चर बाय डिवाइन, हिज डिवाइन ग्रेस और बाय मास्टर। अब देखो है लाइन, दिस इज only one line, but Prabhupada's purport is so deep really. If you want to analyze it, you will reach more depth of the subject. Under the guidance of divine nature means under the guidance of a divine scripture and divine representative of supreme light. Bona fide, जब spiritual master Prabhupada always write bona fide spiritual master. ऐसे क्यों लिखते हैं? प्रमाणिक गुरु क्यों लिखते हैं? What is the definition of bona fide? One who has learned from another bona fide. The one who learned from bona fide. So what is bona fide? Parampara and Shastra. One who is acting according to the scripture in parampara. Scripture is most important. Prabhupada has in preface of Bhagavad Gita written, our Krishna conscious movement is based on Bhagavad Gita as it is, which is historical, which is authentic, which is natural. So Paramanik Guru or bona fide spiritual master is speaking about scripture as he has learned from the parampara. So main thing is the scripture and parampara both. He has learned the scripture under the proper guidance. So guidance of the divine nature. I mean, if we read as this, ordinarily we never go deep into the meaning of this. It's called Devim Prakriti. So when one is promoted in that way by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one under the stage of great soul or Mahatma. The Mahatma does not divert the attention of anything outside Krishna. Ananya Manaso. Now Prabhupada, till this time the purport is based on surrendering to the divine nature. Devim Prakritim Ashanta यहाँ तक था। अब है अनन्य मनसों की बात।
So actually purport you have to divide which word of the verse Srila Prabhupada has described in this paragraph. Now Prabhupada is saying, Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna, means bhajate ananya manaso. Because he knows perfectly well that Krishna is the original supreme person, the cause of all causes, bhutadim avyayam. There is no doubt about it. Such a Mahatma's great soul developed through the association of other Mahatma are pure devotees. महात्मा कैसे बनेगा? दूसरे महात्मा के संग से बनेगा. इसका मतलब परंपरा. What it means actually परंपरा. परंपरा से बनेगा. The pure devotees are not even attached to Krishna's other five features. Now Prabhupada is coming more precisely. Mahatmas are not attached to other features, attracted other features of Krishna, such as four-headed Mahavishnu. So Mahatma sirf Krishna ke hai, the form of Krishna, not even other forms of Krishna. Ye Mam ki, why Prabhupada has written this line here? Because the word Mam twice says Krishna only. Not even other expansion of Krishna, even four-ended form. Yeah, Ananya Mam is more important also. Mam means Krishna. Ananya means other form of Krishna also there. But Mam is more specific. Me, Krishna. They simply attracted by two-arm form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor they are concerned with any form of the demigod or of human beings. They meditate only upon Krishna and Krishna consciousness. They are always engaged in the unswearing service of the Lord in Krishna consciousness. This is Ananya, the whole explanation of Ananya. ये महात्मा की डेफिनेशन है. अब एक 14वें श्लोक का एक लाइन पढ़ते हैं, टाइम हो रहा है. How to recognize Mahatma? Who is taking shelter of the divine nature and who is engaged fully in service of Krishna. ये दो बातें हो गई. अब एक श्लोक पढ़ते हैं. What they do? ये तो अपने आप कर रहे हैं, हमें क्या पता कि उसने लिया कि नहीं है. बाहर कैसे पता लगेगा? How you recognize Mahatma? भाई वो internal, the verse 13 is internal symptom of a Mahatma, external symptom of a Mahatma. How you recognize Mahatma? Satatam kirtanayanto mam. They are always chanting my glories. Again mam. They always chant Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ये कीर्तन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. मेरी कथा सुनेंगे, मेरा कीर्तन करेंगे. That is the one qualification of Mahatma. Yatantascha dridvrtaha. Yatantas, the word yatan means careful. They are very careful that we should not deviate. Dridvrta, therefore they will have woes. Dridvrta means from woes. दृढ़व्रता का मतलब सख्त अपने व्रत धारण करते हैं कि मैं रोज 16 माला जपूंगा, मैं रोज 4 नियम का पालन करूंगा, मैं रोज भगवान का सुबह मंगल आरती जाऊंगा. They have that type of determined woes. नमस्यन्तश्च माम, मेरे को नमस्कार करते हैं. फिर ये माम आ गया. मेरे को नमस्कार करते हैं. कैसे? भक्त्या, प्रेम से. नित्य, always. युक्ता, engage. Upasate. What is the meaning of upasate? Up means near, asate means sit. They sit near to me. Which means they worship me in deity form. Actually, upasate means they sit near to me. How? When we sit near to Krishna? When we do deity worship. So they are engaged always in deity worship. Actually, Mahatma. Ye Mahatma. I think with this one book, I think Achyutananda Swami has written. The name of the book is Blazing Sadhu. आपने पढ़ा है? Prabhupada was dancing when he was 4-year-old. And he said, blazing sadhu means those sadhu, if they are not doing kirtan and dancing, then they're not sadhu. So
So sadhu means dancing in कीर्तन. उसमें स्पेशल ये ब्लेसिंग साधु के नाम से किताब है. So Prabhupada was dancing when he was over 70 years. Can you think? And he taught all the devotees how to dance in kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. This is actually the meaning of the kirtan का सही माना में ये अर्थ है. So सततम कीर्तन यंतो माम, सदा कीर्तन करते रहते. जब देखो कीर्तन करेंगे. कीर्तन क्या है? What are the different type of कीर्तन? गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन. Bhakti Rasamrita Sindhu, you go in a kirtan. Kirtan is of 3 types. And Adi, and also others. 3 तो हैं कीर्तन. रूप कीर्तन भागवत, गुण कीर्तन भगवान के बहुत अच्छे गुण, वो भी भागवत का. नाम कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र. All 3 are कीर्तन. There are 3 type of कीर्तन. 3 प्रकार के कीर्तन का वर्णन है अपने किसमें? भक्ति रसामृत सिंधु में. So of all the process of devotion, bhakti is topmost. सब साधनों में भक्ति महान है पहली बार. और भक्ति में कीर्तन महान है. भक्ति में क्या महान है? और कीर्तन में नाम कीर्तन महान है. ये है एनालिसिस रूप गोस्वामी का. रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु का एनालिसिस क्या है? सब साधनों में महान साधन कौन सा है? भक्ति. और भक्ति में सबसे पावरफुल साधन कौन सा है? शक्तिशाली कीर्तन. और कीर्तन में भी सबसे पावरफुल कीर्तन कौन सा है? नाम कीर्तन. ये है कंक्लूजन श्रील रूप गोस्वामी की. और ये श्लोक वो कंक्लूजन बता रहा है. सततम कीर्तनयन्तो माम, मेरे नाम का कीर्तन करते. यतन्तश्च दृढ़व्रता, बहुत ज्यादा. They are very careful and always follow the strict rules and regulation and rules. Namasyantascha mam, they also offer their obeisance to me. ये 2 लाइनें आप 2 शब्द याद रखो. You remember only 2 things. सततम कीर्तनयन्तो और नमस्यन्तस. ये दो शब्द याद हो गया. ये भागवत की कंक्लूजन है. भागवत का लास्ट वर्ष ये है. नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमतम नमामि हरिम परम. है ना? ये इस श्लोक में दोनों चीजें हैं कि नहीं? द सेम थिंग व्हिच इज द एंड ऑफ द भागवतम इज इन दिस वर्स. नमस्कार भी है और कीर्तन भी है. और दिस इज द एंड ऑफ द भागवतम. सो हाउ डीप इज एक्चुअली भगवत गीता. दिस 2 वर्सेस आर, कितना इसमें डेप्थ है, इसका पर्पट और मीनिंग आपका होमवर्क है. आज पढ़ लेना घर जाके 14th वर्ष का. सततम कीर्तनयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते. यतन्त फुली एंडेवरिंग. फुली एंडेवरिंग का मतलब, यति शब्द किसको कहते हैं एक्चुअली? वो जो जतिपुरा है ना गोवर्धन में, वहां माधवेंद्रपुरी बैठे थे. तो जति असल में कहते हैं, जति वो जो साधु साधक है, अपने इंद्रियों को संयम में रहता है, उसको जति कहते हैं. जति मीन्स केयरफुल. 2 और 6 चैप्टर में 2 वर्ड हैं. यतम प्रयत्नाद यतमानस्तु. प्रयत्न और यत्न दोनों है. प्रयत्न का मतलब आगे बढ़ना, एंडेवर टू एडवांस. और यत्न का मतलब केयरफुल नॉट टू फॉल डाउन. ये दोनों चीजें साथ बोली हुई है. यू endeavor to advance and also be careful not to fall down. तो एक को कहेंगे नेम, एक को कहेंगे यम और नेम. नेम है आगे बढ़ो, यम है नीचे मत गिरो. नेम है ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण और यम है नेवर फॉरगेट कृष्ण. सो सेम रूल इज देयर. सो सततम कीर्तनयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति से मुझे नमस्कार करते. नित्य युक्ता उपासते, सदा ही मेरी उपासना में लगे रहते हैं. उपासना का मतलब एक्चुअली डीटी वर्शिप है अगर देखा जाए तो. थैंक यू वेरी मच. आपके कुछ क्वेश्चन कमेंट हो? टाइम 11:30 हो गया. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा, किसी हम तो सिंपल भगवत गीता की बात ही आपके साथ आज की. इज इट ओके? हैव यू एंजॉयड दिस? अच्छा लगा आपको? श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू वेरी मच. इसके सर्व प्रभु की जय. श्री प्रभुपाद की जय. किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न हो? Anybody has any question, please? Any question, answer, please. Prabhu is there for some time. Within a skin and found no virus. Okay? हरे कृष्ण. Yes, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. Dandvat pranam. हरे कृष्ण. Yes. तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने बूढ़ों से शुरू करके महात्मा तक का जो सफ़र कराया है वो बहुत ही ज्ञानप्रद है और बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी का ये जो कॉम्बिनेशन है उसको भगवत गीता में किस तरह से प्रेजेंट किया है वो भी बता दिया और बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश करवाया कि किस प्रकार से सभी प्रोसेस में भक्ति जो है वो महान है और भक्ति में भी कीर्तन और कीर्तन में भी नाम कीर्तन जो है वो बहुत महान है. हम प्रभु जी कभी कभी जब मेनली किसी से बात करते हैं या प्रचार के लिए जाते हैं तो वो जो बात आपने कही भगवान कृष्ण के बारे में तो आपने उसका उत्तर भी खैर बताया बट बहुत सारे लोग उसको स्वीकार नहीं करते कि जैसे आप कहते हैं कि क्योंकि आप कृष्ण की बात कर रहे हो इसलिए आप कृष्ण के बारे में ज़्यादा फोकस करते हो और उनके बारे में बताते हो और बहुत सारे ऐसे और भी संस्थान हैं जो अलग अलग के बारे में बताते हैं और शास्त्रों का जो हम कहते हैं कि निचोड़ जो है वो भगवत गीता है लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये आर्ग्यूमेंट हमेशा ही रहता है कि क्यों केवल कृष्ण की भक्ति की जाए. तो किस प्रकार से हम समझाएं कि जो अल्टीमेट जो कंक्लूजन है क्योंकि व्यासदेव जी ने इतने सारे शास्त्र लिखे हैं इतने उसके अंदर अलग अलग प्रमाण दिए हैं तो कैसे केवल कृष्ण की भक्ति करनी और किसी और की भक्ति न करनी ये किस प्रकार से बता देता है. I think Srila Prabhupada said most of the people are envious of Krishna. बहुत से लोग भले भगवान को मानते हैं लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं. This is the basic disease of the conditioned soul, to be envious of Krishna. That's why he is enjoying. Because we also want to enjoy. So those who have enjoying mentality, they will not surrender to Krishna because they are competitor of Krishna. वो किसी और का नाम लेंगे लेकिन उसकी जगह पे खुद एंजॉय करना चाहते हैं. So the real problem is they are envious of Krishna. Therefore the envy, this is the 9th chapter of Bhagavad Gita, first verse. Arjun, you can understand me because you are anusuyavi. Because you are non-envious, then therefore you can understand me. आप ईर्ष्या नहीं करते हैं इसलिए आप मेरी भक्ति करेंगे. तो कौन नहीं मांगते हैं कृष्ण को उसका रीजन है they are envious. Is it right? It is. This is again I most of the time quote this conversation between Srila Prabhupada and Giriraj Swami. जब पहली बार गिरिराज स्वामी प्रभुपाद से मिलने गए तो प्रभुपाद उनको देख के कहा तुम कृष्ण बनना चाहते हो या कृष्ण की सेवा करना चाहते हो. यू वांट टू बिकम गॉड और यू वांट टू सर्व गॉड. और गिरिराज महाराज ने कहा कि मैंने ऐसे देखा कि प्रभुपाद हैज सीन थ्रू मी ऑन द टॉप ऑफ माय मिरर देयर वाज ए स्लोगन आई एम गॉड. इसका मतलब प्रभुपाद ने मेरी जो मानसिकता थी मेरा एटीट्यूड था उसको पहचान लिया था और इसलिए महाराज ने कहा आई डिड नॉट आंसर. आई वाज सिंपली सिटिंग क्वाइट, चुप करके बैठा रहा. देन प्रभुपाद आंसर्ड हिमसेल्फ, इफ यू वांट टू सर्व गॉड देन गॉड विल गिव यू इंटेलिजेंस. इफ यू वांट टू बिकम गॉड देन व्हाई गॉड शुड हैव वन मोर कॉम्पिटिटर. Prabhupada answer was very simple.
तुम भगवान की सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारे को बुद्धि देगा, और तुम भगवान बनना चाहते तो भगवान तुम जैसा एक मूर्ख और क्यों पैदा करेगा? And the another question Prabhupada had answered to the newspaper reporter. उसने कहा सब अगर आपके प्रचार करने से भक्त हो जाएंगे तो दुनिया खाली हो जाएगी. Prabhupada said, fools like you will remain, don't worry. So basically, चैतन्य महाप्रभु ने जब रूप गोस्वामी को बताया there are unlimited living entities, आधे तो उनमें से चल भी नहीं सकते हैं, अचर हैं, they are like trees. जो आधे हैं वो चल सकते हैं, वो कुछ आकाश में है, कुछ धरती पे है, कुछ समुद्र में है. समारिंदी वाटर ओशन में है, 9 लाख तो ओशन में है स्पीसीज, और फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, और फिर धरती पे रहने वाले जो हैं उसमें मानुष सबसे कम है. The human is the most अल्प, लेस. और फिर महाप्रभु ने कहा जितने मानव हैं उसमें आधे तो नास्तिक हैं, they don't believe in God. बाकी जो आधे बचे उनमें से आधे भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं. They believe in God but they don't accept God. और जो आधे भगवान को मानते हैं उनमें से भी कोटि कर्मी हैं, सिर्फ कर्म में विश्वास करते हैं. और कोटि कर्मियों में एक मुश्किल से कोई ज्ञानी है जो कहता है अरे कर्म तो बंधन में पड़ेगा डालेगा, कर्म ऑलवेज हैव ए रिजल्ट एंड वी हैव टू सफर, सो वी शुड बी ज्ञानी. और फिर महाप्रभु कहते कोटि ज्ञानी मध्य एक मुक्त. ऐसे ज्ञानी करोड़ होंगे, उसमें से कोई एक है जो लिबरेटेड है. एंड देन महाप्रभु सेड कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त. करोड़ ऐसे जो मुक्त हैं उनमें से कोई मुश्किल से एक कृष्ण भक्त है. और फिर ये फेमस वर्ष आती है रूप गोस्वामी की टीचिंग की, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लटा. यहाँ भी कृष्ण नाम लिखा हुआ है सीधा. जिसके ऊपर कृष्ण कृपा करेगा वही कृष्ण की भक्ति कर सकेगा. हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन जिसके भाग में होगा वही आएगा. हमें अपना सौदा संसार के सामने रखना चाहिए लॉजिक के साथ. जिसका भाग होगा वो भक्त बनेगा. जिसमें अभी एनवियसनेस है वो नहीं बन पाएगा. और बहुत से लोग हैं जो एनवियस, they believe in God, लेकिन कृष्ण के एनवियस है. अब कई गीता लोग परमात्मा ने में लिखा होगा, ब्रह्म लिखा होगा, लेकिन कृष्ण बोलना और लिखने में उनको बीमारी है. लिखेंगे नहीं, पता नहीं कृष्ण से क्या झगड़ा है उनका, मालूम नहीं. This enviousness is a nature of a conditioned soul. और इसको जड़ से निकालना है असल में. और जड़ से निकालना कैसे है असल में? महात्माओं के संग से. बिकॉज महात्मा है निंदा आदि शून्य, किसी की निंदा नहीं करते. उनके संग में आएंगे तो भगवान की भक्ति में जा सकते. हमको महात्मा बनना पड़ेगा तब लोग कृष्ण को मानेंगे. Prabhupada was able to convert so many actually non-believers and even Mayavadis and hippies into Krishna consciousness because he was not envious. खुद नॉन एनवियस था इसलिए लोगों को कर पाया. अब हमारे अंदर भी थोड़ी एंजॉइंग मेंटेलिटी है, इसलिए हम लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए. So until unless somebody become really a Mahatma, then he can convert the other people in devotional service. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Small question, Prabhu. So, Nagar Sankirtan, Grama Sankirtan. Nagar Sankirtan. And Grama Sankirtan. Nagar Sankirtan and Gram Sankirtan. On the topic of this Nagar Sankirtan, Grama Sankirtan, and I could see actually when we go on vacation in India, Christian, they make it a point every Sunday, they make procession, they make Sankirtan. They make it such a way that that everybody can hear loud and clear. There may be temples around the place, but still the way they make it such a way that they pull the attention of the people. So over a period of time, every week they do it such a way that even the the other like Hindus also they get attracted to that. So how we are not able to do that? Because in India we have freedom to do that. We have so many villages, so many cities also.
But we could see that all our ISKCON activities mostly it like like within the place, within the temple premises. So can't we have this kind of Nagar Sangeet and Grama Sangeet, as we have freedom to do that? So why we can't bring the attention of all the people? Why we can't give this the opportunity? Even those non-believers, non-devotees. So over a period of time, we can also bring the attention like how the Christians do that. They have imitated us and we have forgotten it. They don't know Kirtan. They have learned from us and now we have forgotten and they are doing. Chaitanya Mahaprabhu has come actually to inaugurate Sankirtan movement in every town and village. And Srila Prabhupada established Krishna consciousness by street chanting in the Western world. So this is only the process. एक यही साधन है. Then the people, the holy name will enter in their ears. Even they don't know it, they will be benefited. So the Sankirtan should be started definitely. 2 hours Sankirtan a day keeps Maya away, was the slogan of early devotees of Krishna consciousness. अब थोड़ा संकीर्तन कम हो गया है, इसलिए लोग पूछते हैं वेयर आर यू ISKCON पीपल. दुनिया में लोग पूछते हैं आप कहाँ चले गए. सो संकीर्तन कम हो गया है. यू आर राइट, इट शुड बी एवरी डे in every town and village. Definitely there is much Chaitanya Mahaprabhu's mood. That is the purpose Krishna ISKCON is established for Nam Sankirtan. नहीं हो रहा है, आपने whatever reason it may be. पढ़े लिखे जो लोग ज़्यादा हैं जो बाहर नहीं जा रहे हैं. पहले लोग गांव के थे, कीर्तन करने में चले जाते थे. पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा संकोच हो रहा है. And this means still they are in bodily conception. हमारा realization एक है. If you want to go beyond bodily concept, अगर तो फिर हरि नाम संकीर्तन में इंस्टीट्यूट में जाओ. Then you will go beyond bodily concept. Then you forget that who am I. सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम, only हरि नाम संकीर्तन. So हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए. You are right. It is good that we should revive हरि नाम संकीर्तन in our center in India and abroad. We should go beyond the temple premises. You should go everywhere. Everywhere. In all Kumbh Melas we have only 3 business. Every day Harinam Sankirtan with a devotee in Bullock cart, every day Prasad distribution and every day book distribution. Prabhupada said our Sankirtan is 2 types, book distribution and holy name. And along with that Prasad distribution. These 3 things will make us successful. You are right, this we need it. Pakka. Hare Krishna. One more question and then end. हरे कृष्ण प्रणाम. प्रभु आपने बताया कि जब किसी महात्मा के हृदय से संवित और आह्लादनीय शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करेगी तभी भाव प्रकट होगा. इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो किसी महात्मा से कनेक्ट, मतलब डायरेक्ट उनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो भक्ति कर रहे हैं. तो इस तरह से कैसे होगा? मतलब इसमें तो बहुत समय लगेगा भाव प्रकट होने में. It takes long time. भाव जागृत होना. कृष्ण आप पढ़ेंगे आगे भक्ति रसामृत सिंधु तो लिखा है सुदुर्लभा. भाव भक्ति सुदुर्लभा है, बहुत मुश्किल है. 2 रीजन है. हमारे अपने एफर्ट से मिल नहीं सकती. हमारे साधन से आसक्ति तक जाए तो भी नहीं मिलेगी. और दूसरा कृष्ण देने में भी बहुत रिजर्व है कि मैं एक बार भाव भक्ति दे दिया तो मैं इसकी दास हो जाऊंगा. सो इट्स सुदुर्लभा. भाव भक्ति इज वेरी रेयर. भाव भक्ति देने के लिए किसी महात्मा की कृपा ही चाहिए, तभी भाव भक्ति जागृत होगी. ये भाव भक्ति की डेफिनेशन है. देन भाव भक्ति विल मैच्योर ऑटोमेटिकली इनटू प्रेम भक्ति. लेकिन भाव भक्ति सुदुर्लभा में 2 रीजन है. आपने पढ़ा है भक्ति रसामृत सिंधु में जो 6 कैरेक्टरिस्टिक है डिवोशनल सर्विस के.
क्लेश घनी एंड शुभदा, ये साधन भक्ति में आ जाते हैं। साधन भक्ति करेंगे तो पाप सब नाश हो जाएंगे, आपको लोग अच्छा कहेंगे और आप लोगों की अच्छाई करेंगे। ये दो तो है साधन भक्ति में। दो है भाव भक्ति में, मोक्ष लघु करता है सौ दुर्लभा, ये भाव भक्ति तक आते हैं, उससे पहले नहीं आते। और दो है जो प्रेम भक्ति में आते हैं, भाव भक्ति में ही नहीं होते। वो कौन से दो? कृष्ण आकर्षणी एंड सांद्र आनंद विशेष आत्मा। कृष्ण आकर्षणी और सांद्र आनंद। और कृष्ण आकर्षणी में राधा रानी और डिवाइन का एनर्जी का ही वर्णन है। वहां प्रभुपाद ने लिखा है राधा रानी का नाम भगवत गीता में देवी में प्रकृति, उस प्रसंग में लिखा हुआ है। रूप गोस्वामी का जो ये टुकड़ा है वहां प्रभुपाद ने एग्जैक्टली राधा रानी को लिखा है, डिवाइन एनर्जी। तो ये 6 जो लक्षण है, तो भाव भक्ति सुदुर्लभ है, इट्स नॉट इजी। क्योंकि भाव भक्ति जिसको होती है उसके 9 लक्षण हैं जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। 9 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भाव भक्ति, जो क्राइटेरिया है। अष्ट सात्विक भाव हैं, आंसू आना, रोमांच होना, लेकिन वो तो कोई एक्टर भी कर सकता है भाई, एक्टर भी कोई कर सकता है। इसलिए वो क्राइटेरिया बोनाफाइड ऐसा ऑथेंटिक नहीं है, और कोई महात्मा वो नहीं दिखाए ऐसे भी कर सकता है। इसलिए 9 अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भाव भक्ति आती है। उसमें 9 का नाम पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है, एक ही श्लोक में सब है। अव्यर्थ कालत्वम, एक टाइम नहीं बिल्कुल गंवाता है। और 9 पूरे हैं देखने, आशाबंध, अवर्त कालत्व इज द फर्स्ट वन, नॉट वेस्टिंग टाइम, होपिंग अगेंस्ट होप, आशाबंध, समुत्कंठा, ये 9 लक्षण पढ़ने पड़ेंगे। और देखेंगे हमें आए कि एक भी नहीं आया है। हमारे को उत्कंठा होती है प्रसाद कब मिलेगा, और ये उत्कंठा भी अच्छी है भाव भक्ति प्रकट करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय गौर।